Today we discuss English textbook. Okay, chapter 10 exercises. And chapter name is My dog at my homework. मेरा जो कुत्ता है, मेरा जो होमवर्क जो है उसको खा गया. My dog at my homework. We have to discuss earlier. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. So आज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. So be ready for first you open page number 86. Okay. And you open your copy, your notebook. Then you have to do some question answer. See the blackboard properly. Okay. All the number you have to important. So don't miss any numbers, any words, any sentence. Okay. All are important for you. So let's start the first number. We have to mark this sentence as true or false. Okay. हम लोग जो है फर्स्ट जो है ट्रू और फॉल्स करेंगे. सो लेट्स सी द ब्लैकबोर्ड प्रॉपर्ली. मार्क दिस सेंटेंस as true for T, you have to write T, or false you have to write F. Okay. So हम लोग जो है जो सेंटेंस राइट रहेगा उसमें टी लगाना है बॉक्स में, और जो फॉल्स रहेगा उसमें लगाना है एफ. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर वी हैव टू डू द स्पीकर. द स्पीकर at the dog homework. The speaker at dog's homework. स्पीकर जो है डॉग का होमवर्क खा गया. इट इज राइट और रॉन्ग? नो, इट्स ए फॉल्स. ठीक है. सो यू हैव टू राइट एफ. डॉग जो है स्पीकर का होमवर्क खा गया, ना कि स्पीकर जो है डॉग का होमवर्क खा गया. ठीक है. सो ये फॉल्स. नंबर 2, द डॉग speaker speakers homework. क्या मायना पढ़ा तो? Okay dear student, the dogs the speakers homework पूरा. डॉग जो है पूरा स्पीकर जो हमारे जो कवि हैं राइटर उनका जो होमवर्क है पूरी तरह से खा गया. इट इज राइट. यस, ट्रू. ओके. देन वी हैव टू डू थर्ड नंबर. द डॉग took the speaker homework into small pieces. Small pieces. A dog took the speaker's homework small pieces. जो डॉग जो है जो राइटर स्पीकर है उसका जो होमवर्क हो पूरा पीस पीस करके काट दिए थे. नो, इट्स फॉल्स. एक साथ निकल गए थे. ओके. ये एक साथ निकल गए थे, उसको पीस पीस नहीं काटा. ठीक है. द डॉग टोल्ड द स्पीकर होमवर्क इनटू स्मॉल पीसेस. ये स्मॉल पीसेस नहीं किए थे, एक साथ उसको निकल गए. सो 1 2 3 नंबर you have to write in your copy. Okay. Then you have to do others number. Okay. The student, just you keep your mind. First you understand the sentence, then you will easily do all the numbers. Okay. Which is the true, which is the
false. So just you see the blackboard properly and understand the sentence. Okay. So let's see the blackboard. Next, fourth number. The dog found the speaker homework very tasty. Very tasty. It's a fun moment. Okay. A dog found the speaker's homework very tasty. वो डॉग जो देखता है कि होमवर्क जो बहुत टेस्टी होगा, नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, ये फॉल्स। ठीक है। कागज का टुकड़ा कोई टेस्टी हो सकता है क्या? नहीं। कोई अगर उसको मीट मिल गया और कुछ अच्छा खाना मिल गया तो टेस्टी हो सकता है, कागज का टुकड़ा नहीं हो सकता। सो हियर यू हैव टू राइट फॉल्स एप। Then 5 number. The dog mixed the speaker the dogs mix the speaker homework with its food. So the dog makes the speaker homework with its food. यानी उसका जो खाना था उसके साथ होमवर्क को मिक्स कर गया था क्या? नो, होमवर्क को ही एक साथ खा गया था, उसका फूड ही नहीं था। ठीक है, होमवर्क को लेके ही खा गया था। सो इट्स फॉल्स। You have to write app. Okay. Fourth number, 5 number also completed. So mark this sentence are true or false. 1 number to 5 number completed. Just you write in your copy all the numbers. Then you have to do question answer. Let's see the blackboard. Okay. We have to do some question answer. You have to open page number 86. See properly your book. Then you have to see blackboard and write all the numbers in your copy. Okay. So let's start. Answer this question. Answer this question. Answer this question. Okay. So first number we have to do what happened. What happened to speaker? To the speaker? To the speaker homework. Homework. स्पीकर का जो राइटर का होमवर्क के साथ क्या हुआ था? क्या कुछ हैपन हुआ था? कुछ एक्सीडेंटली क्या हुआ था? What happened to the speaker homework? Let's see the blackboard. You have to write question answer. Okay. So let's see blackboard. So dear students, let's see the blackboard. Answer this question. First number we have to do what happened to the speaker homework. स्पीकर का जो राइटर का होमवर्क के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था? The answer is the speaker dog got his homework. ठीक है, तो उसके साथ जो क्या हुआ था? स्पीकर्स डॉग्स गॉट हिज होमवर्क। यहाँ पे जो राइटर का जो स्पीकर का डॉग है वो उसका जो स्पीकर का होमवर्क है वो पूरी तरह से निकल गया। ठीक है, निकल गया था यानी खा गया था। The speaker's dog got his homework. Then 2 number, what will the teacher have to wait for? What will the teacher have to wait for? टीचर किसको लेकर मतलब अपेक्षित थे यानी कि उसको इंतजार कर रहे थे। What will the teacher have to wait for? The answer is the teacher will have to
वेट फॉर द होमवर्क। ठीक है, टीचर जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे जो क्लास चलता रहता है तो बच्चे जो है होमवर्क करके लाते हैं, सो उसी को टीचर जो है इंतजार करते थे। ठीक है, क्लास वर्क तो क्लास में हो जाता है, बट कोई अगर आज होमवर्क दिए तो कल टीचर जो है बच्चे होमवर्क करके लाएंगे और अच्छे से लिख के लाएंगे, और उसको टीचर जो है इंतजार करते रहते हैं। ओके, सो 1 number and 2 number completed. Let's see the third and fourth number. Okay, see the blackboard properly. Okay, let's go ahead to see third number. Do you think the speaker likes to do his homework? Why? No, the speaker does not like to do his homework because himself mix it with the food in his dog's bowl. ठीक है, तो ये होमवर्क आप कर नहीं पाए, डॉग जो है उसका मिक्स कर दिया है, उसका जो बॉल है, उसका जो खाने का जो कटोरी दिया जाता नहीं है, कटोरी बोलते हैं ना उसको, ठीक, खाने का जो भी है बॉल्स, उसको जो डॉग्स को दिया जाता है उसमें मिक्स हो गया है। देन फोर्थ नंबर, who do you think is mischievous in the poem, the dog or speaker? Why? The speaker the speaker is mischievous as makes his homework in his dog, और डॉग के अंदर गुस्सा हुए क्योंकि डॉग जो है उसका जो बहुत कीमती जो होमवर्क है वो निकल गया था, खा गया था। ओके, so write down 3 and 4th number in your copy. Then you have to do next number, fill in the blanks with these words. Page number 87. Just you see. Okay. Then you have to do fill in the blanks. Okay. That's number. I hope you all are write all the numbers positively. It's very important for you. See the blackboard properly and write all the numbers. एक टाइम में अगर समझ नहीं आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देखो और अच्छे से लिखना है सबको। ठीक है, so let's see the blackboard properly. You have to do fill in the blanks with this word. Fill in the blanks. Okay. Fill in the blanks. फर्स्ट ब्लैंक्स में आप लोग को लिखना है म्यूजिक, जो फर्स्ट ब्लैंक्स है। देन सेकंड नंबर जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है फीवर। ओके, देन थर्ड नंबर जो है उसमें लिखना है चेयर। ओके, देन फोर्थ नंबर में आपको लिखना है विनर। ठीक है, फोर्थ नंबर में लिखना है आपको प्लेयर। ठीक है, प्लेयर लिखना है। देन लास्ट में लिखना है आप लोग को विनर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है प्रोसेस, पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोग को लिख दिया हूँ। फर्स्ट में लिखना है म्यूजिक, सेकंड में फीवर, थर्ड में चेयर, फोर्थ नंबर में प्लेयर, देन फाइव नंबर में विनर। ठीक है, then you have to see the picture here. Dogs do not eat paper. What do they eat? Can you tell what the animal eat? ठीक है, तो जैसे डॉग जो है पेपर नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे जो पेपर्स खा गया बोल के दर्शाया गया है। सो ये देखो आप लोग क्या देख रहे हो, बिल्ली है। बिल्ली क्या खाता है? ग्रास तो नहीं खाता, बीन्स भी नहीं खाता, क्या खाता है? फिश। ओके, सो फिश को आप लोग को टिक करना है। ठीक, देन सेकंड नंबर, एक चूहा देखो, ब्रेड नहीं खाता, सनलाइट भी नहीं खाता, तो क्या खाएगा वो? कैरट। क्या खाएगा? कैरट। कैरट को आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, देन थर्ड नंबर आप लोग देखो, एक जेब्रा देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या खाता है? प्लांट। प्लांट को आपको टिक करना है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर आप लोग एक गोट देख रहे हो। गोट क्या खाता है? मीट नहीं खाता, वाटर भी नहीं खाता है, तो पीने वाला चीज है ये, लिप्स को आप लोग को टिक करना है। ठीक है, देन एक क्रायंस देख रहे हो यहाँ पे,
तो ये क्या खाता है? रेट। ये रेट। बर्ड्स जो है बहुत बड़ा सा एक बर्ड दिख रहा है, तो ये क्या खाता है? रेट खाता है। फ्रूट नहीं खाता ना, एयर नहीं खाता है, ठीक है। सो दिस वन आल्सो completed. Then we have to do grammar section. 88 page you have to open. 88 page. Then you have to do read the poem and underline the describing words. कुछ describing words यहाँ पे दिया गया है। एक छोटा सा poem है, ठीक है? A little green frog. A little green frog. So you have to read this one poem and underline the describing words. Describing word को लिखा है हम लोग को यहाँ पे जो है टिक करना है या उसको अंडरलाइन करना है। So just to first read a little green frog. A little green frog once lived in a pool. A little green frog यानी ग्रीन कलर का जो फ्रॉग है छोटा सा एक पूल के नीचे रहता था। The sun was hot. और सन जो है बहुत ही गर्मी हम लोग को देता है कि but the water was cool और वाटर जो है बहुत ठंडी होती है। He sat in the pool. पूल जो रहता है पानी का जो पूल है और पूल में बैठा हुआ है। The whole day long बहुत टाइम हो गया बैठा हुआ है and sang one square little dear little song. तो एक सॉन्ग जो है गुनगुनाता हुआ गा रहा है, ठीक है? कौन? फ्रॉग। सो एक छोटा सा स्टोरी पोएम है लिटिल ग्रीन फ्रॉग, ठीक है? सो हम लोग को यहाँ पे अंडरलाइन करना है। देखो मैं किस किस को अंडरलाइन करना है आप लोगों को, मैं यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको लिख रहा हूँ। लिटिल को अंडरलाइन करना है और ग्रीन ये जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फर्स्ट में आप लोग को ये करना है। देन थर्ड नंबर का हॉट को अंडरलाइन करना है और कूल को भी अंडरलाइन करना है। उसके बाद लॉन्ग को अंडरलाइन करना है। देन स्क्वायर को अंडरलाइन करना है और लिटिल, ठीक है? लास्ट में लिटिल को भी अंडरलाइन करना है, ठीक है? सो दिस वर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव भी बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को, ठीक है? तो फर्स्ट जस्ट सी 88 पेज, रीड द पॉइंट प्रॉपर्ली एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है इसको अंडरलाइन करना है। लिटिल, हॉट, कूल, लॉन्ग, स्क्वायर, ग्रीन, लिटिल, ठीक है? इतना को आप लोग को अंडरलाइन करना है बस। उसके बाद हम लोग फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स है आप लोग जो नीचे दिख रहे हैं। येलो कलर का जो बॉक्स है उसमें दिया गया है गोल्डन, कोल्ड, ग्रीन, लाउड, स्टार, टायर्ड, फ्लॉपी, व्हाइट, प्रिटी, ब्लू, वुडन, टॉल, स्वीट। तो ये जो वर्ड्स है हम लोग को जो आप लोग सेंटेंस देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग को पुट अप करना है, ठीक है? सो जस्ट कीप सी द ब्लैक बोर्ड प्रॉपर्ली, ओके? सो वी डू fill in the blanks with adjective. This adjective, ठीक है? यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिया गया है येलो कलर का बॉक्स में, उसमें हम लोग fill in the blanks करते हैं। fill in the blanks with these adjectives, ठीक है? एडजेक्टिव जो वर्ड्स है उसको हम लोग को फिल करना है। फर्स्ट नंबर देखो, द लायन हैड ए, फर्स्ट हम लोग को लिखना है गोल्डन, तो पुट अ गोल्डन मैन around his head, around in his head, ठीक है? लायन देखने हो तो उसका हेड में जो गोल्डन कलर का जो मैन है वो राउंड रहता है, देखे हो ना? लायन आप लोग ऐसे रियल में देखेंगे किसी भी डिस्कवरी चैनल या टीवी चैनल्स पे बाकी जो चैनल्स में आप लोग देखें गोल्डन कलर का एक राउंड सा उसका हेड में रहता है, ठीक है? सो वी हैव टू पुट अप हियर
गोल्डन, गोल्डन मैन, ओके, उसको मैन बोला जाता है, M-A-N-E। देन सेकंड नंबर द फ्लॉपी, the floppy and white, the floppy and white could floated, floated to the blue sky, blue sky. Then sentence is completed. Okay, the floppy and white cloud floated through the blue sky. ब्लू स्काई में फ्लफी एंड व्हाइट कलर का जो क्लाउड रहता है, जो मेघ रहता है, वो जो है फ्लोटेड होता है, यानी कि इधर उधर होता रहता है, ठीक है, यानी कि भासमान भी उसको हिंदी में इसमें बोल सकते हैं, भासमान होता है, वो फ्लोटेड होता रहता है। द फ्लफी एंड व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड थ्रू द ब्लू स्काई, ओके। देन थर्ड नंबर, नेक्स्ट यू सी इन spring. In spring, the grass was green. Here we have to put the green, and the flowers looked pretty. Okay, here we have to put a pretty. स्प्रिंग सीजन जो है जो सीजन्स का किंग बोला जाता है। द स्प्रिंग सीजन द ग्रास वाज ग्रीन, जो स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर घास जो है ग्रीन कलर में दिखता है। एंड द फ्लावर्स लुक प्रिटी, यानी जो फ्लावर्स है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्रास जो है ग्रीन दिखता है और फ्लावर्स जो है बहुत सुंदर ही दिखता है। प्रिटी मींस ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर, ठीक है। सो 1 2 3 नंबर यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ओके। पुट अप द blanks properly. Here first you have to put a golden, floppy, white and blue. Then third number green and pretty, okay. So keep your mind and write all the numbers, okay. Then you have to do another number. See the blackboard properly, okay. The student, just keep your mind, it's very easy. Just you have to understand the sentence and using correct place, correct words, okay. So we have to write another number. Let's see the blackboard properly, okay. Then we have to do fourth number. The old woman was very tired. Here we are using tired. So she sat down on the wooden bench, okay. So sentence is completed. The old woman, यानी कि एक बुढ़ी सी औरत जो है बहुत थका हुआ थक गई थी, ठीक है। So she sat down on the wooden bench, यानी कि लकड़ी का जो बेंच है उसमें जाके बैठ गई, ठीक है। So this sentence is completed. The old woman was very tired, वो बहुत ही थकी हुई थी। So she sat down on the wooden bench, यानी कि लकड़ी का जो बेंच है उसमें जाके बैठ गई, ठीक है। Then we have to do 5 number. Let's see. Last night a dull
tree was hit by a flash of lightning. Flash of lightning. Okay, so it's mean in rainy season, its lightning is very dangerous for us. So last night a tall tree was hit by a flash of lightning. ठीक है, तो एक यहाँ पे बोला गया है लास्ट नाइट को, पिछले रात को जो है एक बड़ा सा पेड़ जो है उसको जो बिजली है, जो लाइटनिंग होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है. ठीक है, लास्ट नाइट tall trees was hit by a flash of lightning. Okay, so fourth number and fifth number also completed. First fourth number I repeated. Again the old woman was very tired, so she sat down on the wooden bench. जो old woman है बहुत ही थकी हुई थी, वो जाके एक wooden bench में बैठ गई. Then five number last night a tall tree was hit by a flash of lightning. तो एक बड़ा सा पेड़ को लाइटनिंग हुआ है. ठीक है, लास्ट नाइट. ठीक, so we have to here put a dot. Okay, then let's see number 6 and 7 here. The tiger just see the tiger had sharp, बहुत ही नुकीला टीथ. टाइगर का बहुत ही नुकीला टीथ यानी दांत रहता है. एंड इट लाउड रूर, यानी उसका जो गर्जन है, यानी उसका जो चिल्लाना बहुत ही लाउड है. ठीक, देन 7 नंबर नाइट एंगल. The night angle has a sweet voice. Sweet, we have to put up here sweet voice. Night angle का बहुत ही सुंदर मधुर आवाज रहता है. ठीक, the night angle has a sweet voice. Okay, here sweet means बहुत ही मीठा आवाज रहता है. ठीक, then 6 number again repeat it. The tiger and shark had sharp teeth and loud. टाइगर का बहुत ही नुकीला दांत रहता है, बहुत लाउड, और उसका जो वॉइस का रोयरिंग बोलेंगे या उसका जो गर्जना है बहुत लाउड रहता है. 7 नंबर द नाइट एंगल हैज ए स्वीट वॉइस. नाइट एंगल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्वीट मीठा सा वॉइस रहता है. ओके, सो दिस वन आल्सो कंप्लीटेड. सो डियर स्टूडेंट, डू ऑल द नंबर्स. ओके, all the write all the numbers properly, 1 to 7 number. Then you have to do another number, that is match the picture with the name. Note the IR sound is the names. Okay, here you have to picture, see the picture 89 page number 89. Keep in mind. Then one number, what you see, one of the birds, so you have to match bird. Two number, what you see, one of the jokers or circus, cycling. ओके, सर्कस आजकल ये देखने को मिलता नहीं. बच्चे जो है इसको कई बार टीवी में देख लेते हैं, बट सर्कस जो है एक मज़ेदार जो शो है, उसको देखने का हम लोग अभी भी वंचित हैं. ठीक है, सो सर्कस सेकंड नंबर. थर्ड नंबर एक शर्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, क्या है, शर्ट. देन फोर्थ नंबर वन गर्ल्स, एक गर्ल्स दिखाई दे रही है. देन 5 नंबर 13, ये है एक बर्थडे और कार्ड, उसमें लिखा है 13. ओके, सो राइट डाउन दिस वन एंड मैच इट. फर्स्ट नंबर को मैच करना है बर्ड्स के साथ, सेकंड को सर्कस, थर्ड नंबर शर्ट, फोर्थ नंबर गर्ल्स, 5 नंबर
13. Okay, so you have to clear this one, write in your copy, match it in your book. बुक में भी आप लोग इसको मैचिंग करेंगे, ठीक है. देन द लास्ट नंबर, fill in the blanks with these IR words. IR words में इसको मैच करना है, ठीक है. fill in the blanks. IR words, IR words, I और R words में हम मैचिंग करना है, ठीक है. IR words. So just you see the blackboard properly. It's your last number. Okay, then you have to do yourself listening and speaking. Do yourself. It's your homework. So first number, you see page number 90. At the top of some words is here called yellow boxes. Dirt, chip, squat, birthday. First, the first number, the boy's cloth is with full of dirt. After he had played in the park. So it's mean एक जो बच्चा है उसका जो शर्ट है वो खराब हो चुका है. Dirt after he had played the park. ठीक है, यानी कि उसका धूल मिट्टी से पूरा उसका क्लॉथ में लग गया, ठीक है. Then second number, first here you put up first the crew collected some twigs then she began to move her nest. Okay, so this one you have to complete it. Number 2, first the crow collected some twigs, then she began to build her nest. कुछ twigs वो जो है कलेक्ट करता है पहले, उसके बाद उसका जो घोंसला है वो बनाती है, ठीक है. Then you have to do another number 3, 4 and 5. Let's see the blackboard properly. Okay, you have to do all the numbers 3, 4 and 5. It's your last number. Okay, so write all the numbers properly. Then third number, some sparrows come to my window, see every morning and cheep loudly. So it's mean loudly. Okay, it's mean कुछ जो स्पैरो है वो डेली जो है मॉर्निंग को विंडो सिल के पास आते हैं और चीप लाउडली, यानी कि उनका जो चिल्लाना है, जो चिल्लाना को यहाँ पे चीप लाउडली बोला गया, ठीक है. वो उनका जो आवाज है चीप टाइप का, चीप जो करते हैं और बहुत सी लाउडली वॉइस में ये लोग करते हैं, ठीक है. देन फोर्थ नंबर, माय बर्थडे. You have to put up here, my birthday is in October
is in October, I will be 7 years. 7 years old. Okay. So my birthday is in October. I will be 7 year old. यानी कि इस अक्टूबर को जो है मेरा बर्थडे है और उस समय मैं 7 साल की हो जाऊंगा. ठीक है, उस समय जो है मैं 7 साल का हो जाऊंगा. So we have to put up here birthday. Okay. Then last number, 5 number. During the Holi festival, people squirt water on each other. Squirts. Here the squirt water on each other. Okay. So during the Holi festival, people squirt water on each other. जो होली का सीजन रहते हैं, अनोखा जो फेस्टिवल है, तो एक दूसरे को जो है वाटर छिड़कना, कलर वाला जो वाटर रहता है उसको छिड़कते हैं, गुलाल लगाते हैं. मज़ेदार जो है फेस्टिवल है जो सभी लोग इसको मनाना पसंद करते हैं. ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल पीपल स्क्वाट वाटर ऑन ईच, और एक दूसरे को जो रंग लगाते हैं वाटर गन में, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, it's completed. Today we have completed chapter 10 exercises English textbook. My dog at my homework is a short poem, short story, short poem. Okay, so I hope you all are enjoying this chapter. Write all the numbers positively. Do not leave any ones and see video one time, two time, third time. जब तक आप लोगों को समझ न आए तब तक इस वीडियो को देखिए, सारे नंबर को लिखिए, because nowadays is very dangerous for you. Your home is now a school. स्कूल जो है आपका घर ही आपका स्कूल है. सो आप लोग जो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए. Stay home, stay safe and enjoy all the video. Not only for English subject but also all the subject you have to video see and write all the number properly. Okay. जो एक्सरसाइजेज है आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग आवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.